اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری. میرا مقصد ہی یہ ہے. اگر میں نہیں گزاری تو آخرت میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مجھے جواب دینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابن آدم تم اپنا قدم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سے نہیں اٹھا سکو گے جب تک تم جواب نہیں دو گے کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری, پیسہ کہاں سے کمایا, کہاں لگایا, جوانی کہاں گزاری. آپ لوگ جب گھر سے نکلتے ہو ڈیفینیٹلی تیار ہوتے ہو, شیشے میں دیکھتے ہو, ہم تبھی تیار ہو کے نکلتے. کبھی لاسٹ میں نکلتے وقت اللہ سے ایک کوشچن اپنے آپ سے کیا کرو کہ میں جو گھر سے باہر نکل رہی ہوں جس حالت میں, کیا میرے اللہ کو یہ حالت پسند ہوگی؟ کیونکہ اگر آپ عبادت میں ہو, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں تو کہہ دیا نا کہ اپنی اوڑھنی اپنی سینوں پہ ڈال لو. ہم نے اوڑھنیاں ہی غائب کر دی. اب آپ مارکیٹ میں جاؤ کپڑے لینے, اوڑھنیاں ملیں گی نہیں, تو چلو ٹھیک ہے وہاں پہ اوڑھنیاں بھی نہیں ملی تھی. پھر سورۃ الاحزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یدنین علیہن جلابیبہن, کہ جب تم گھر سے باہر نکلتے ہو تو ایک جلباب اپنے اوپر ڈال لو. لیکن ہم نے شاید قسم کھا لی ہے کہ ہم نے اللہ کا حکم کوئی نہیں ماننا, کیونکہ شیطان اتنا پاورفل ہے. دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں ہر چیز, کیونکہ ہمیں اپنے گھر میں, اپنی دوستوں میں, اپنی فیملی میں ہر جگہ وہی چیز نظر آتی ہے, تو عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. رائٹ, تو پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قیامت کے دن جا کے کوشش بھی کرنی چاہیے. دیکھیے قرآن بینہ ہے, قرآن بینہ ہے. قرآن میں ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی. آج ماشاءاللہ یہ بچی ایک نئی زندگی میں جا رہی ہے. رائٹ, ایک نئے عہد کو, نکاح از اے عہد, ایک نئی زندگی میں ایک عہد کرنے جا رہی ہے. اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے رب سے بھی ایک عہد کیا ہے. رائٹ, سب سے پہلے ہم نے وعدہ الست کیا تھا جب ہماری روحیں تھی, تب ہم نے عہد کیا تھا کہ اللہ کی بات مانیں گے. رائٹ, وہ ہمارا رب ہے, وہ ہمارا خالق ہے, مالک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے جب مسلمان, کیونکہ ہم تو پیدا مسلمان گھر میں ہوئے, تو ہم نے ایسے لا الہ الا اللہ پڑھا کوئی نہیں تھا, تو ہم نے بس سوچ لیا کہ ہم مسلمان ہیں, اب ہماری زندگی ہم جیسے بھی جئیں گے ہم اپنی طرح سے, کیونکہ میں کر کے میں اپنی زندگی کا سوچتی ہوں. جب میری زندگی میں قرآن نہیں کھولا تھا تو میری زندگی کیا تھی, I was very happy. مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باہر جاتی ہوں, اگر میں پارٹیز میں جا رہی ہوں, میں جس بھی حال میں جا رہی ہوں, الحمدللہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر میں مہندیوں پہ جا کے جو ڈانس کر رہی ہوتی تھی, بچیاں سب سے اگلی لائن میں بیٹھ کے تالیاں بھی بجا رہی, ویری نائس ویری نائس, کوئی بات نہیں. پتہ ہی نہیں تھا کہ انما حرم ربی الفواحش بھی اللہ نے کہا ہے کہ تمہارا, جس وقت میں حرام کے زمرے میں آ رہی ہوں تو کیا فرشتے مجھ پہ رحمتیں بھیج رہے ہیں؟ وہ وقت میں میرے اوپر فرشتے کیا بھیج رہے ہیں, ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں مصیبتوں میں ڈالوں, تمہارے اپنے اعمال کافی ہیں جو تمہیں مصیبتوں میں ڈال. ہم اپنے آپ کو پتہ ہے شیطان بھی ہمیں بہکا دیتا ہے, نہیں یہ آزمائش ہے, نکل جاؤ گے, اس پہ بھی آزمائش ہے, اس پہ بھی آزمائش ہے. یہ سوچنے کا موقع بھی نہیں دیتا کہ میرے اوپر جو مشکلیں آ رہی ہیں یہ میرے اپنے اعمال ہیں. اس وجہ سے اب جو لوگ میری عمر میں آ رہے ہیں ان میں یہ بات کا اچھے سے احساس ہوگا کہ کیونکہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ہمیں احساس بھی اتنا ہوتا, کیونکہ لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اسکول گئے, اسکول سے آگے کھانا کھلایا, سلا دیا, اٹھا لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا. جب ایکچولی بچے پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں, آپ کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میری شادی کا مقصد کیا تھا. ایک ہم نے وہ عہد کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, رائٹ, اور شادی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ, دیکھیں قرآن میں اس یونٹ پہ اتنا کام ہوا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل میں اس یونٹ پہ بتایا ہوا ہے کہ شادی کیوں کر رہے ہیں. دو لڑکا ایک لڑکی کو جب ملایا جا رہا ہے تو ان کا مقصد کیا ہے یہ شادی کا, کہ ایک نئی نسل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملانا ہے, اس کا مقصد حیات بتانا ہے. جب ہمیں خود پتا ہوگا تب ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے نا. ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے کہ الحمدللہ میرا بچے تو بہت اچھے, ہاں دنیاوی لحاظ سے ہم نے بڑے پیارے بچے پیدا کیے, جابز کے لحاظ سے دیکھو ایک سے ایک اچھی جابز ہیں, پیسے بنانے میں کامیاب ہیں. کیا ان کو اپنے اللہ سے ملایا جس طرح سے اللہ نے ملانے کا حق, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ تم نے وہ حق ہی نہیں ادا کیا, کہ تم کر کیا رہے ہو کہ اپنے بچوں, کیا ہمارے بچے ایک دن اسکول نہیں جاتے ہمیں تکلیف ہوگی؟ ہوتی ہے نا, کیسے مطلب سویا پڑا رہ گیا, بیٹا اسکول جانا ہے, اٹھو. اور اگر ایک وقت کی نماز قضا ہو جائے, ہمارے میں سے کتنوں کے دل پریشان ہوتے, نہیں میرا بچہ ماشاءاللہ ایک گریڈ سے کم آیا تو آیا کیوں, لیکن اللہ کے پاس کوئی گریڈ نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم نے نئی نسلیں تیار کرنی ہیں. اگر ہمیں نہیں پتا ہوگا تو ہم اپنی نسلوں کو کیسے تیار کریں گے؟ اب
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو اس یونٹ پہ میں بات کری تھی، ماشاءاللہ اس کا نکاح ہو رہا ہے، تو اللہ سبحانہ ایک بڑی پیاری مجھے بات لگی، میں نے کہا میں آپ لوگوں سے بھی وہ شیئر کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور قیامت کے دن پکارا جائے گا اس عورت کو کہ 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہتی ہے وہ داخل ہو جائے، اور وہ عورت کون ہوگی؟ جو فرما بردار بیوی ہوگی، رائٹ، فرما بردار بیوی ہوگی، اور نمبر 2 یہ کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہوگی، اور پھر عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی۔ دیکھیے یہ بڑا الحمدللہ۔ اور 2 طرح کے لوگ ایسے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کی نمازیں جو ہے نا وہ سر سے اوپر نہیں جاتی، وہ نمازیں تو پڑھ رہے ہوں گے، کون ہے؟ نافرمان بیوی، رائٹ۔ اور پھر مومن کی سب سے بڑی نعمت جو ہے نا اس کی نیک بیوی ہے۔ اب میں یہاں پہ ایک بات یہ کہوں گی کہ کیونکہ دیکھیں جب نکاح ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جوڑے پہ نازل کرتے ہیں نا وہ ہے سکون اور مودہ۔ مودہ کہتے ہیں دلی محبت۔ تو اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ روم میں ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کے معجزات ہے نا، کہ ایک نشانی یہ ہے لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، کہ the moment بچی کا نکاح ہوتا ہے اور بچے کا نکاح ہوتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، کیونکہ سکون ایسی چیز ہے جو آپ بائی نہیں کر سکتے، آپ کچھ بھی کر کے دیکھ لیں، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو اس وقت فرشتے اللہ کی طرف سے سکون لے کے اترتے ہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، 2 اور چیزیں، مودہ کہتے ہیں دلی محبت، کیونکہ ایک بڑا خوبصورت احساس ہوتا ہے کہ میرا نکاح ہو گیا، اب میں شادی شدہ ہو گئی ہوں، اب ہی از مائی ہسبینڈ، تو وہ جو مودہ کی فیلنگ ہے نا وہ نکاح کے وقت ایک اسی وقت وہ فیلنگ بھی پیدا ہوتی ہے، اور پھر اللہ کی بے شمار رحمت الحمدللہ۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے کہ نکاح کے خطبے میں آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن میں سے جو آیات پہ کی ہے نا ان میں ایک ہی بات ہے، اور آج تک وہی خطبہ پڑھا جاتا ہے، خطبہ چینج نہیں ہوا جو رسول اللہ پڑھتے تھے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا بچوں، یہ جو نیا رشتہ تم نے قائم کرنے جا رہے ہو تم اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ حقوق و فرائض کا معاملہ آ جاتا ہے۔ دیکھیں ایک نیا گھر، کیونکہ ابھی تو لڑکا ہے نہیں ہے نا تو ہم اپنی بچی سے بات کریں گے کہ ایک نئے گھر میں جب بچی جاتی ہے تو اس گھر میں اتنے سالوں 30-40 سال کی ایک اپنی رسومات، اپنے وے آف لائف، اپنا طریقہ ہوتا ہے، تو جاتے ہی میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بیٹا بدلنے کی کوشش نہ کرنا، ایسے نہیں کہ نہیں مجھے آئی ڈونٹ لائک دس، پہلے دیکھو اس گھر کو، دیکھو اس کو چپ کر کے آبزرو کرو کہ ہر ایک کی عادتیں کیسی ہیں اور کس طرح سے رہنا۔ اب تو الحمدللہ کافی آسانیاں ہیں کہ بچے ویسے بھی علیحدہ رہتے ہیں، تو اس طرح کی وہ ٹف لائف جو ہماری زمانے میں ہوتی تھی وہ نہیں ہے، لیکن سٹل کیونکہ یہ دونوں رشتے قائم ہوتے ہیں، دونوں گھر آپس میں، اس ناٹ اونلی کہ لڑکا لڑکی ملتے ہیں، 2 گھر آپس میں ملتے ہیں، تو ان گھروں میں سکون کیسے رہے گا؟ کیونکہ دیکھیں سب سے بڑی بات کہ جب اس گھر کی کوئی بات باہر نہیں کرنا، اپنی مما سے نہیں کرنا، اپنی بہن سے نہیں کرنا، اور پہلے سے یہ عہد کرنا ہوتا ہے اپنے آپ سے، کیونکہ دیکھیے عورت، ہم میں سے ہر ایک نے جب اپنا گھر بنایا ہوتا ہے نا، ہم نے بالکل ایک مرغی کے بچے کی طرح نہیں جیسے اپنے اندر چھپایا ہوتا ہے، اس کی خامیاں، اس کی ماں کس لیول سے گزر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ان کو چھپا کے رکھتی ہے، دنیا سے کوئی بھی نہیں ظاہر کرتا نا۔ لیکن جب ایک نیا گھر آتا ہے، وہ لڑکا آئے یا لڑکی آئے، جیسے ان کے گھر میں تو خیر سے لڑکا بھی آئے گا، تو اس گھر کی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر سمجھدار بچی ہوگی نا تو اس کو کبھی ایسے نہیں کہ ماما ادھر تو ایسے ہوتا ہے، ماما ان کی تو بیٹی ایسے تھی، ماما ان کا تو دماغ ایسا تھا، تو وہ بڑی تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں جب وہ گھر کی باتیں باہر نکلنی شروع ہوتی۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھو گھروں کو بنانا بہت سال لگ جاتا ہے اور توڑنا بڑے آسان ہو، اور یہ بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے زندگی کا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بچوں کی شادیوں کا مرحلہ آتا ہے، کیونکہ یہ آسان معاملہ نہیں ہے۔ شادی جو ہے سب ہیوج ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پہلے ایک بچی کی اپنی زندگی ہوتی ہے، میرا گھر، میرا فون، میرا کمرہ، میرا ٹی وی، میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک دم سے ہر چیز میں شیئر کرنا ہو جاتا ہے، اس میں پھر بڑے حوصلے سے، بڑے صبر کے ساتھ، اور اس میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ سمجھدار مائیں جو ہوتی ہیں وہ بچیوں کو جمانے میں شروع کا ٹائم ہر ایک کے لیے مشکل ہوتا ہے، اللہ کرے کہ آسانیاں جن کی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر
मुश्किल होता है, नया घर, नए रिश्ते, नया सारा कुछ, तो उस वक्त एक माँ का जो फर्ज होता है कि वो किस तरह से बच्ची को शुरू में तो ये कि बेटा मुझे कुछ ना बताना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ट्राई टू हैंडल योर सेल्फ, क्योंकि तुम अब बड़ी हो, तुमने इतने साल मुझे देखा है ये सारा कुछ करते हुए, तो आसानियां हो जाती। देखिए सबसे पहली बात है कि शादी की बुनियादी चीज जो है ना वो ट्रस्ट है। अगर हम एक दूसरे पे ट्रस्ट होता है ना तो बहुत आसानी हो जाती है। अगर ट्रस्ट ही नहीं होगा तो शुरू में से ट्रस्ट नहीं होगा तो आगे रिश्ता निभाना मुश्किल हो जाता है। नंबर 2 ये कि रिस्पेक्ट इतनी जरूरी है। कई दफा हम कहते हैं कि मैंने आगे से जवाब तो दिया कोई नहीं था, मैं तो चुप थी, लेकिन आपकी सर से पांव तक बॉडी लैंग्वेज पक्की बता रही होती है कि रख के एक मारूंगी पीछे हट जाओ। तो एक अगले बंदे को अगर खामद है तो डेफिनेटली, बीवी को बीवी है तो खामद को उसको रिस्पेक्ट देना। और स्पेशली आदमी जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको बनाया ही ऐसे है, वो कवाम है। अल्लाह ने कुरान में बता दिया ना कि उसको एक दर्जा फजीलत दी है, राइट। तो उसकी नेचर में है। औरत इज वो लव 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 प्यार करने वाली, और आदमी थोड़ा सा ऐसा होता है, ऐसी झूठी झूठी तारीफें करते हैं। आदमी को उसकी जगह पे रखना जरूरी होता है, ठीक है। अगर वो खुश रहेगा इस मामले में, पता भी हो जाता है कि उसको क्या चीज पसंद है, क्या चीज पसंद नहीं है, उसमें जो खामियां हैं उनको कैसे दबाना है और उसकी अच्छाइयों को कैसे एलिवेट करना है। दोनों तरफ से ये चीजें होती हैं। अब फिर सबसे बड़ी बात केयर करना। केयर में देखिए वही बात आ जाती है कि 2 घर हैं, अलग से हैं, देखो इस चीज का ख्याल रखा। अल्लाह ने कोई 2 इंसान एक जैसे नहीं बनाए, हमारे उंगलियों के निशान एक जैसे नहीं है, 2 डिफरेंट बिल्कुल स्पीशीज है। आदमी बिल्कुल डिफरेंट तरह का और औरत बिल्कुल, और अल्लाह ने बीच में देखिए मवद्दा भी डाल दिया, रहमत भी डाल दी। तो उसके साथ जब हमारी प्रायोरिटी अल्लाह सुब्हानहू तआला होंगे ना कि मेरा मकसद क्या, अल्लाह को जब आप सेंटर में रखोगे ना तो हर रिश्ता आसानी के साथ, मेरे अल्लाह का क्या हुक्म है इस रिश्ते के लिए, इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, तो आसानियां हो जाती हैं, बहुत आसानियां हो जाती हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए आसानियां फरमाए। क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम पाकिस्तान की बात करें या यहाँ की बात करें, हालात तो हर जगह पे एक जैसे हैं। अगली जिंदगी में जो हमारी बच्चे जा रहे हैं ना, अगर हमारे बच्चे कामयाब हो जाते हैं, अगर आप देखें दुनियावी लिहाज से कामयाब हो भी जाएंगे ना, अगर उनको आप दीन नहीं बताओगे, हर वो चीज, ईच एंड एवरी नेमत आपको जो अल्लाह ने अता की है उसके साथ हदायत का मैजिक स्टोन नहीं लगा, वो आपके लिए अजाब बन जाए। ये याद रखिए। हर वो चीज, आपको पैसा अगर दिया हुआ ना, अगर उसमें पैसे में हदायत मीन्स कि आपका हलाल का पैसा नहीं है, वो पैसा आपका ऐसे निकलता है कि जान भी लेके निकलता। अगर आपकी औलाद है, आपने दुनियादार बना दिया, अपनी अल्लाह की पहचान नहीं दी है, जो आपको इसका जवाब तो देना है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला को। अगर आपने नहीं दी, आपके दुनियादार बच्चे हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह के लिहाज से तो वो फेल हो जाएंगे ना, कि दीन दिया ही नहीं है तुम लोगों ने। हर वो नेमत को याद रखिएगा जो अल्लाह ने आपको जिंदगी से लेके आंखें, हाथ, पांव, चलना फिरना, बैठना उठना, बात करना, हर नेमत अगर हदायत पे नहीं है तो आपके लिए वो अजाब बन जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बैना कुरान में बयान कर दिया हुआ। हम फिर रोते हैं, फिर डिप्रेशन होता है। क्यों बड़ों को इतना डिप्रेशन में पड़े होते हैं? क्योंकि जब उनको एक्चुअली नजर आता है तो तकलीफ होती है। इतनी प्यारी एग्जाम्पल लगती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना खूबसूरती से बताया कि तुम एक दूसरे का लिबास हो, तुम कैसे एक दूसरे को ढांप लेते हो। उसकी खामियां तुम ढांपो, तुम्हारी खामियां वो ढांपेंगे। कुछ उधर से होता है, कुछ इधर से होता है, जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। तो ये पहला यूनिट होता है। देखिए जब हम स्कूल बनाते हैं तो कितना काम होता है कि आप बिल्डिंग पहले देखते हैं कौन सी होगी, फिर प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, टीचर्स रखते हैं, ट्रेनिंग हो रही है, ये वो। दिस इज एग्जैक्टली सेम थिंग कि एक स्कूल बन रहा है नई नस्ल के लिए। और अगर दोनों मियाँ बीवी में हार्मनी होगी, मोहब्बत होगी ना, तो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली अच्छे निकल आएंगे। और जब वो अच्छे निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें सुकून होगा, आसान जिंदगी हो जाए। तो ये एक छोटा सा सबक था जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि हमारी जिंदगियों के मकसद सिर्फ बच्चों को दुनियादार बच्चे बनाना नहीं है। दुनियादार तो काफिर भी बनाते, बल्कि हमसे ज्यादा अच्छे बनाते, लेकिन हमने उनको अल्लाह से मिलाना है, उनको अल्लाह की बात बतानी है। और जब तक आपकी जिंदगी में कुरान नहीं खुलेगा ना, वल्लाही सब झूठ है। कुरान खोलें, अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जाके कोई बहाना नहीं होगा। जिंदगी बहुत छोटी है और बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाली है। और जैसे हमारी आंख बंद होगी, आखिरी सांस होगा, फरिश्तों ने तो आ जाना है हिसाब लेने। क़यामत तो बड़ी बात की बात है। जब हमारे पास आखिरी वक्त आता है तो क़यामत हमारी आ जाती है।
कोई बहाना नहीं चलेगा। इसलिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए आसानियां फरमाए और हमें जो मकसद है हमारी जिंदगी का उसकी समझ आए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके घर को रोशन करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये नया घर है, अल्लाह सुब्हानहू तआला जुबीन को सारे बच्चों की, इसके खावन की खुशियां नसीब करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसकी आंखों की ठंडक बना के रखे। शादी इज अ सबर एंड शुक्र, जो अल्लाह नेमतें देंगी उस पर शुक्र, और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कभी थोड़ा बहुत ऐसा होगा, और वो होता है सबके साथ। और जब ये पता चलता है ना अच्छा सबके साथ होता है तो सुकून हो जाता है, अच्छा ठीक है बस सारों के साथ हो रहा है, मैं अकेली नहीं। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला जी खैर करेंगे। अब छोटी सी दोनों जॉब कर रहे हैं, लड़के लड़कियां, तो कहते हैं हम भी करके आए वो भी करके आए तो हम क्यों करें। देखिए एक ऐसे नहीं, तुम्हें इतना जरूरी है जितना तुम्हारा घर को सही करने का। देखिए वही बात है ना, प्रायोरिटी हमने खुद ही बदली है। हमें इसीलिए मैंने पहले बात की है कि हमारा मकसद क्या है, जिंदगी का मकसद तो नहीं चेंज होना ना, वो तो उधर का उधर है। अब आप उसके अराउंड कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर आपने अपना मकसद पूरा नहीं किया तो फिर आप फेल हो गए। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब औलाद नाकाम होती है, देखिए आजकल अब तो खैर टॉपिक हमारा दूसरी तरफ जा रहा है, लेकिन आजकल अब देखिए ड्रग्स कितनी आम है बच्चों में। और मैं क्योंकि कुरान से जुड़ी हुई हूँ, मेरे इतने लोगों से बात होती है, वल्लाही 99% जब मेरी बात होती है माँ को पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं, क्योंकि स्मोकलेस है, ना खुशबू है, ना धुआं है, ना कुछ है। अब पहले जमाने में तो कभी लड़कों का सुनते थे, लड़कियां से सेम चीज है, और बच्चियां भी और बच्चे भी। माँ को सबसे आखिर में माँ को पता चलता है, घर वालों को, बात दुनिया को पहले पता चल जाता है। और मैं अपने बच्चों से सारा ये कहती हूँ, अल्लाह का वास्ते मेरी इज्जत रख लेना बेटा। आखिर में घर वालों को पता चलता है, बात तो सबको पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। अब फिर अगर एक दफा इन्वॉल्व हो जाए, बच्चों को वापस खींचना बहुत मुश्किल है। तो आगे चैलेंजेस बहुत बड़े। हम पता है जब तक अल्लाह ना करे अराउंड बिल्कुल नहीं आती ना बात, तो हम कहते हैं अच्छा फलाना का बच्चा, हाँ ये फलाना का बच्चा, वो पता ही नहीं होता कि अपने घरों में हमारे क्या हो। तो अल्लाह आसानियां करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह जी बरकतों वाली जिंदगियां रखे। जब माएँ समझदार होंगी तो आगे बहुत आसानियां हो जाती है, बहुत आसानी हो जाती है। और इंशाअल्लाह ऐसी माँ की बच्ची है तो आसानियां तो अल्लाह इंशाअल्लाह। फिर वही बात होती है ना कि जब पता होता है तो फिर आगे अपने बच्चों की तरबियत आसान हो जाती है। तो जिनको नहीं पता लगता, जब उनको एहसास होता है तो फिर टू लेट भी हो जाता है ना। तो क्या करें, कहें चिलाकी करते समझते अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, और उन लोग को जो ईमान लाए उनको धोखा दे रहे हैं। ये नहीं धोखा दे सकते, ये खुद ही अपने आप को धोखा दे रहे हैं, इनको शऊर नहीं है इस बात का। तो सारे का सारा मामला जो है ना, वो सिर्फ हारमनी के कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं चाहते दुनिया में फसाद हो जाएगा अगर हम अल्लाह की बात नहीं मानते। अगर कोई भी इंसान की बात भी आप करें ना, तो इसीलिए फसाद क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हम अपने नफ्स की पूजा करना शुरू हो जाते हैं। हम जब अल्लाह की बात नहीं मानेंगे तो फिर हम अपने नफ्स की मानेंगे, या शैतान नफ्सी हो जाता है। अगर दूसरी तरफ आप उस तरह से लेके जाते हैं, फिर वो हमें ख्वार करके रख देगा। फिर हमें नहीं एहसास होता कि किसी का हक मारना कितनी तकलीफ है। अब मैं मेरे बच्चे उनके लिए हम माहौल क्रिएट करते जाएंगे, लेकिन किसी का बच्चा भूखा सड़क पे आ जाए तो उसकी फीसें भी नहीं जा रही, कोई परवाह नहीं होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये जो बार बार आज भी देखेंगे, जो ये बात है ना कि नहीं मानोगे तो फिर दोज़ख में जलोगे जाके, ताकि हम बाज आ जाए, ताकि दूसरों के हमें इस बात की समझ आ जाए कि एक जो दर्द उधर हो रहा है ना, उस बंदे को मैं नहीं फील कर पा रही हूँ, वो दर्द का एहसास अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं कि वहां पे जो तकलीफ होगी वो नहीं बर्दाश्त कर सकोगे। दुनिया अमल की जगह है, वहां रोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे कि एक दफा माफ कर दे, कोई माफी कोई नहीं होनी है वहां पे जाके। दुनिया में ना करो ऐसे। तो ये मामला है, बस इतना सा। अच्छा जी, अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आया नंबर 82 में, फ़इन तवल्लौ, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये मुंह मोड़ लेते हैं ना। अब देखिए इतनी बड़ी बात के बाद आप सोचिए कि अगर फिर भी कोई कहता है कि जी खैर है, अब मुझे कौन देखा है, मैं पैसों के मामले में तो मैं नहीं करने वाली हूँ, या ठीक है बस अब और क्या। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर ये फिर भी मुंह मोड़ लेते हैं, फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन, कि नबी आपके बस काम ये है कि जो पैगाम मैं आपको दे रहा हूं उसको बैना बयान कर लो। अब ये देखिए जो दाइए दीन है ना, नंबर 1 ये कि दाइए दीन ने खुद आपने, ये मैं फॉर एग्जांपल दाइए दीन हूं, मैं दीन का पैगाम देना चाह रही हूं, मैंने चूज किया है ये रास्ता और अल्लाह से मदद मांगी है, ठीक है। अब मेरे पास चॉइस क्या है कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का दीन है मेरे पास है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो
उसकी विरासत है। ये पढ़ा था ना कि नबी कोई विरासत नहीं छोड़ के जाते, वो इल्म है जिसको आगे हमने दूसरों तक पहुंचाना है। तो ये हम खुद चूज कर रहे हैं कि मुझे ये रास्ता चाहिए। अदरवाइज तो आप देखो वो जो हम पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि तुम में से खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, नहीं सॉरी ये तो तारीफ वाली थी ना, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि हर कोई जो भी मुसलमान है, हमारा मकसद क्या है, वो आया एकदम से मेरे ज़हन में आएगी, मैं फिर से आपको बताती हूँ कि तुम में से हर एक का मकसद क्या है कि नेकी की तलकीन करना और बुराई को रोकना वाली, मैंने 1000 दफा ये आया पढ़ी आप लोगों के सामने। लेकिन हम में से हर मुसलमान, औरत, मर्द, बच्चा, उसका काम ही ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि तुम में से तुम्हारा मकसद क्या है इस दुनिया में आने का, कि तुमने अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना है। अब अगर मैं उसको चूज करती हूँ कि मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि मैंने अब ये रास्ता पिक कर लिया, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया कि फिर बलागुम मुबीन, उसको बैना बयान करना है। अब ये लपेट के आपने कई दफा देखा है कि बाज लोगों से आप कोई क्वेश्चन पूछे, ताये दिन आए थे ह्यूस्टन में, तो उस काफी साल पहले की बात है, तो मैं गई, उस वक्त बड़ा शौक भी होता था, तो मैं उनको गई सुनने के लिए क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स थे। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया था उस वक्त, तो उन्होंने इतना गोल जवाब दिया कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आई कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो मुझे गुस्सा भी आया। मैंने कहा देखो इतने बड़ा टॉपिक था जिसके बारे में मैंने सवाल किया था और इतना गोल गोल जवाब दे दिया। अच्छा जब नेक्स्ट टाइम आए तो फिर मैंने उसको मोर क्लियर करके कि वो कोई ऐसी बात ना कर सके, देन जाके उन्होंने इतनी जल्दी जल्दी उसका जवाब दिया ताकि लोगों को हर्ट नहीं हो, शायद उनका ये मकसद होता है, या फिर वो क्राउड देख के इस तरह का जवाब देते हैं। आई हैव नो आइडिया। लेकिन आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे क्या फरमाया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देखिए ये कौन सा दौर था, जब भी ये वो दौर था जिसमें मुसलमान को मुसलमान कहने पे भी मुश्किल हो रहा था, उधर कोई हार नहीं बनाए जाते थे। आज अगर हम ये कहते हैं ना कि हाय बड़ा मुश्किल है किसी को ये कहना, तो आप वो दौर सोचा करें, सहाबा का सोचिए, ताबईन का सोचिए, तबा ताबईन का सोचिए कि वो भी तो बयान करते थे ना। अगर वो देखिए हमने कई दफा ये भी चालाकी हो जाती है कि हाय हाय अभी तो मैं खुद ही ऐसा नहीं हूं तो मैं फिर दूसरों को क्या मना करूं। तो मुसलमान हो ना, तो कम से कम वो एक गुनाह हो रहा है कि जिसमें हम फॉलो नहीं कर पा रहे अल्लाह के अहकामात को उस तरह से, तो दूसरी पार्ट तो ना छोड़ो, इसको छोड़ते हो तो इसको भी छोड़ देते हो कि किसी को आप हक की बात भी ना कहो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये बलागुम मुबीन, क्योंकि आप कुरान सुनने वाले हैं, आप कुरान पढ़ाते भी हैं, आप सुनते भी हैं, आप सीख भी रहे हैं, तो ये वाला सेंटेंस जो है ना इसको अंडरलाइन करके रखें कि अल्लाह का हुक्म जो भी है उसको बैना बयान करना होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यारिफूना, वो पहचानते हैं नेमत अल्लाह की नेमत को, सुम्मा युनकिरूनहा, फिर वो उसका इनकार कर देते हैं, वह अक्सरुहुम, और उनमें से अक्सर अल काफिरून, पक्के काफिर। तो अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे अगर आप ये देखिए कि अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं फिर भी इनकार करते, अल्लाह की नेमत कौन सी है, सारी नेमतें अल्लाह की हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें दीन को अल्लाह की नेमत लेते हैं ना, तो आप देखें कि मुशरिकीन मक्का के सामने जब कुरान पेश किया जा रहा था और फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए थे तो वहां पे यहूद पहले थे, और यहूद तो अहले किताब थे, लोग पहले समझते थे ये तो पढ़े लिखे लोग थे ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके बारे में कहा था कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, फिर भी इनकार करते हैं। आज हम देखें कि हमें बैना पता होता है कि ये अल्लाह का हुक्म है, फिर भी हम नहीं कर रहे होते। क्यों नहीं करते हैं, क्या कमजोरियां हैं, ये नहीं समझ आती। आप और मैं देखिए, मैं कितनी दफा, मैं अब जब दर्स भी देने कभी होता है ना, शादियों पे जाती हूँ, तो यूजुअली मैं उनको कहती हूँ कि मुझे ना बुलाओ। नंबर 1 ये कि मुझे वैसे भी घर से परमिशन नहीं होती है ऐसे, लेकिन अगर जिस शादी पे मैंने खुद जाना होता है तो वहां पे मैं बोल देती हूँ, लेकिन मैं फिर बैना बोलती हूँ। मैं उनको ये कहती हूँ देखो खैर से तुमने इतनी शौक से शादी का पहला फंक्शन रखा कि अल्लाह की बरकतें नाजिल करने के लिए ना, तो खुदा के लिए फिर ऐसा ना करना कि अल्लाह का गजब नाजिल हो जाए। ये बेचारे मासूम बच्चे जो शादी के रिलेशन में जा रहे हैं, फिर हम ऐसे ऐसे फंक्शन जो मेहंदियों पे हम डांस और गाने और म्यूजिक और ये सारा कुछ करते हैं, लेकिन उससे क्या अल्लाह की रहमतें तो नाजिल नहीं होगी। लेकिन आप खुद ही सोचिए, मैं और आप हैं, हमसे ये क्यों नहीं छूट रहा। हमने खुद पढ़ा कुरान में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, पढ़ा ना, बेशक तुम्हारे रब ने हराम किया बेहयाई को, फिर भी नहीं समझ आती है। क्यों नहीं आती है, क्या चीज हमें रोकती है, किस चीज का डर है,
उस रब का डर नहीं है, आखिरत का डर नहीं है, फिर भी हम ये सारा कुछ करते हैं और बच्चों से मजबूर, खामन से मजबूर, फलां से मजबूर, उससे मजबूर, उससे मजबूर। आखिरत में आप पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जब जाके बहाने करेंगे तो फिर क्या होगा। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, अब आगे देखिए आयत नंबर 84 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वयौम नबअतु, और जिस दिन हम खड़ा करेंगे मिन कुल्ली उम्मतिन, हर उम्मत से, शहीदन, गवाह, सुम्मा ला युज़नु, और फिर ना इजाजत दी जाएगी, लिल्लज़ीना कफरू, उन लोगों को जिन्होंने इनकार किया था, वला हुम युस्तअतबून, और ना ही उज़र कबूल किए जाएंगे। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला जो नबी या रसूल जिस उम्मत पे आए थे ना, उनको गवाही के लिए पेश किया जाएगा, गवाहियां होंगी। हम क़यामत सोचते हैं ना, पर सुपरफिशियल, पता नहीं उस दिन क्या होगा, ये तो गायब की बात है। ये देखें गायब के पर्दे खुल खुल के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए थे मेराज पे, उन्होंने अपनी आंखों से दोज़ख को देखा, फिर हमें बताया था, है ना। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करें कि उस दिन क्या होगा, नबियों को लाया जाएगा, उनसे गवाहियां ली जाएंगी। ना सिर्फ नबियों से गवाहियां, आप देखिए हमारी जिल्दें गवाहियां देंगी, कुरान में पढ़ा, हमारी आंखें, ये हवा, ये जमीन, ये जिस पे चल के जाते हैं हमारे पांव, हमारी एक एक उज़्व हमारे लिए गवाहियां देगा। और सबसे बड़ी गवाही हमारे नबी की होगी, गवाही कि मेरी उम्मत ने मेरी जो मैंने पैगाम दिया था उसको कबूल किया था कि नहीं किया था। हदीस याद रखें वो वाली, कि जिस दिन वो हौज़ कौसर पे हम लोग जाएंगे और वो रसूलुल्लाह खुश होंगे देख के, तो फरिश्ते कुछ लोगों को, जो लोग ऐसे होंगे, उनको कहेंगे कि पीछे हटो, पीछे हटो। तो रसूलुल्लाह फरमाएंगे कि ये मेरी उम्मत के लोग हैं। कैसे पहचानेंगे? उनके वुजू के निशान, उनके सजदे के निशान से वो पहचानेंगे, क्योंकि वो शाइन कर रहे होंगे ना। तो रसूलुल्लाह कहेंगे कि ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं। तो फरिश्ते क्या कहेंगे कि या रसूलुल्लाह, ये बिदअत करते थे, इन्होंने आपके बाद नया नया तरीका दीन में इस्तेमाल किया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि इनको दूर करो। बता तो दिया ना, अब ये कोई अचानक तो चीज होनी कोई नहीं है कि अच्छा हमें तो पहले पता नहीं था, पहले बताया जाता। मैं सिर्फ ये बात कहती हूँ कि देखिए मैं और आप फॉर एग्जाम्पल, हम कई दफा नहीं पता चलता, हमें लगता है कि इतने बड़े बड़े इस्लाम फॉलो करने वाले इतने नेक लोग हैं, अगर ये भी कर रहे हैं तो क्या इनको नहीं पता होगा। तो कोई चीज जब आप खुद कुरान पढ़ोगे, खुद जानना शुरू करोगे ना, ऑनेस्टली आप लोगों का दिल गवाहियां देगा। और जहां थोड़ा सा भी खटका हो ना, आपको लगे कि शायद ये सवाब का काम होगा, करूं कि ना करूं, वो पढ़ा था तो उसमें तो ऐसा था कि ये इस तरह की चीजें तो दीन में नई चीजें हैं, तो मैं करूं कि ना करूं, तो ना ही करो। क्योंकि अगर किया तो चलो सवाब तो है, लेकिन अगर वो चीज ना हुई तो गुनाह बर्दाश्त कर सकोगे, सवाब के लिए तो और भी करोड़ों चीजें हैं जो हम लोग कर रहे होते हैं। सिर्फ मैं कहती हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया, जो दुआएं बताई, जो करने को कहा, जो कुरान से समझ आती है, हम सिर्फ वो भी अमल कर लें। हमें सांस एक जिंदगी काफी नहीं है वो अमल करने के लिए, तो नई नई चीजें कहां से करेंगे हम लोग। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व इज़ा रआ, और जब देखेंगे अलज़ीना ज़लमू, उन लोगों, वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, अल अज़ाब, अज़ाब को, फला युखफ़फ़ु अन्हुम, और उनसे नहीं कम किया जाएगा, वला हुम युनज़रून, और ना ही वो मोहलत दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। और जिस दिन क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अब किन लोगों को कहा था, जो लोगों ने दुनिया में जुल्म करते रहे हैं ना, जुल्म हर लेवल, जुल्म को आप अगर आसानी से इस तरह से समझ लें कि जो चीज जहां पे रखने का हक है ना, हम वहां से हटा दें उस चीज को, तो वो उस चीज का हक मारना जुल्म हो जाता है। अगर आप इस तरह से, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म तो शिर्क है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ किसी और को, उसकी सिफात में किसी और को शिर्क बनाना। अपने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कहा कि लोगों, तुम अपने नफ्स को अपना खुदा बना लेते हो, अपने पैसे को खुदा बना लेते हो। जुल्म हर जगह पे, आप खुद से इमेजिन करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मिराज पे गए थे तो आके क्या कहा था, लोगों अंज़रतुकुम, मैं तुम्हें डरा रहा हूं, अंज़रतुकुम नार, ए लोगों मैं तुम्हें आग से डरा रहा हूं, लोगों आग से बचो, ख्वाह खजूर का एक टुकड़ा देकर इस आग से बचना पड़े, क्योंकि वो देख आए थे। और दोज़ख की आग जो है ना, वो दुनिया की आग से 69 डिग्री ज्यादा है। अब उसको जो हिसाब लगाने वाले, हम तो बस पढ़ लेते हैं ना, तो फिर उससे अल्लाह करे हमें सबक हासिल हो जाए। दुनिया की आग में आप देखिए
छोटी सी फिंगर भी आग पे लगती है ना तो पूरा दिन जल रही होती है उस जगह, इतनी सी भी जल हो जाती है। अगर खाना पकाते वक्त, रोटी पलटते वक्त उसकी भाप ही सिर्फ लग जाती है, और दुनिया की आग को चीखती चिंगारती नहीं होती है, फिर भी हमारा ये हाल होता है। तो जहन्नम की आग, जो दुनिया की आग है ना, उन्होंने कहा कि 2000 डिग्री सेंटीग्रेड शुमार होती है उसके अगर हीट आप देखते हैं, लेकिन जहन्नम की आग जो है वो 1,38,000 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो हमें हदीस से मिलता है। उसके मुताबिक उन्होंने कहा, अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है क्या फरमाया था? मैंने इसलिए लिखा कि मैं आपके सामने ये पढ़ूं ताकि हमें सबक बस मिल जाए इंशाअल्लाह। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि दुनिया की आग से 69 दर्जे ज्यादा वो आग है, वहां आग का लिबास है, वहां आग का बिस्तर है, वहां आग के साइबान हैं, आग की छतरियां हैं, आग की बोझल जंजीरें और बेड़ियां हैं, आग में पैदा होने वाले जहरीले सांप और बिच्छू हैं, आग को कांटेदार थोर, वहां पे खाने को कांटेदार थोर का दरख्त मिलेगा, खौलता हुआ पानी मिलेगा, बदबूदार पीप और खून मिला हुआ होगा। सूरत तूर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, देखो लोगों, ये है वो आग, क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे ये है वो आग जिसको तुम झुटलाते थे दुनिया में, कुछ नहीं होना, ऐसे ही हमें डराते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अब देखिए कि सूरत मुल्क हम जो रात को पढ़ते हैं, आज मैंने कहा था ना कि उसके बारे में भी आएगा कि इज़ा उल्कू फीहा सामिउ लहा शहीकम वहिया तफूर, जब उसको वैज़ा उल्कू फीहा, जब फरिश्ते जो है ना आग में फेंकेंगे तो वो आग कैसी होगी? सामिउ लहा शहीकम वहिया तफूर, तो वो आग चिंगाड़ रही होगी, चीख रही होगी, तकादु तमय्यज़ु मिनल गाइज़, कि वो ऐसा हाल होगा कि जैसे वो फट पड़ेगी। गुस्से में होता है ना कि जिस चिंगाड़ी होगी, दुनिया की आग ऐसी नहीं होती कि वो लगे चिंगाड़ी है, चीख रही है, वो तो इतने आराम से पता होता है आग है लगी हुई है कहीं पे भी। कभी तो वो अच्छी वाली आग भी होती है जिसपे हम हाथ भी ताप रहे होते हैं, कभी खाना पका रहे होते हैं। क़यामत की बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और ये सूरत मुल्क में एवरी नाइट हम पढ़ते हैं ताकि हम बास आ जाए, कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सालम खज़नातुहा अलम यातिकुम नज़ीर, जब फरिश्ते घसीट के लेके जा रहे होंगे ना तो पूछेंगे बंदों से। देखिए फरिश्ते जो है ना उनके पास कोई इमोशंस नहीं होते, कोई इमोशंस नहीं होते, वो सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब उनको हुक्म देंगे घसीट के दोज़ख में लेके जा रहे होंगे ना तो साथ हैरत से पूछेंगे, तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था दुनिया में? क़ालू, तो वो लोग कहेंगे बला, हाँ हाँ आया था, कद जाअना नज़ीर, कि डराने वाला आया था हमारे पास। फकज़्ज़बना फकुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, कि हमने कहा, हमने जुटला दिया उसको, और हमने क्या कहा था? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे कोई नहीं कहा। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता था इंसान अल्लाह ने पैदा किया। आज मैंने आपको रूट वर्ड बताए हैं ना इसके, कि अल्लाह ने बता दिया कि उधर वो ये कहेगा कि कोई नहीं, कालू बला का जाना नज़ीर, कोई डराने वाला नहीं आया था, तो हमने झुटला दिया उसको। तो हमने वकुल्ला, और हमने कहा मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, अल्लाह नकरा, अल्लाह ने कुछ नाजिल ऐसा नहीं किया हुआ। आज कहते हैं लोग कि मत डराओ अभी, कोई नहीं, ऐसी बात तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई नहीं कही है। इन अंतुम इल्ला फी दलालिन कबीर,